ये जैसा ब्रदर थॉमस ब्रदर बोल रहा था कि स्पेशल टॉपिक है, ऐसा कुछ स्पेशल टॉपिक नहीं है, ये हमने कई बार सुना है इस टॉपिक को लेकर। Just like Brother Thomas said that this is a special topic, but I don't think that this is a special topic because we have heard about this many a times. हमने नया वाचे के बारे में कई बार सुना है We have heard about the new covenant many times. और वही चीज मैं उस चीज को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। And I want to repeat this matter again. नया वाचा में नया जीवन के वाचे में प्रवेश करना। How to enter into the new covenant. ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमने कई बार सुना है इस बात को Though we have heard about this many a times, और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, प्रभु मुझे रेवलेशन दो, इस बात को प्रकट करो कि ये क्या है एक्चुअली। so we can ask the Lord, Lord, please reveal to me what it is to enter into the new हो covenant. सकता है हमने बहुत सारा मैसेज न्यू कॉन्वेंट के ऊपर सुना रहेगा, बट हम एक नॉलेज के तौर पर रहेगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा था। Maybe we have heard a number of times about this topic, but we are not aware of how to enter into this new covenant. बट लेकिन वो लाइफ, वो जीवन मैं नहीं देख पाया, Because this life of the new covenant is something that I was not able to enter into. वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक मैसेज था मेरे लिए, एक नॉलेज था। It just remained a message to me. It was just a knowledge. तो इसलिए मैं बात को मैंने देखा कि मेरे जीवन में ये सिर्फ एक मैसेज था, बट एक लाइफ नहीं था। तो हमको इस बात को मैं मेरे खुद के जीवन में जाना, तो मैं मेरे अंदर प्रभु में ये तो सिर्फ एक मैं सुना एक नॉलेज है, बट मुझे लाइफ चाहिए। So I had to tell the Lord that, Lord, this is just a message or just a head knowledge for me, but I want to enter into this life. मैं थोड़ा सा पुराना नियम के बारे में बताना चाहता हूँ। I want to speak something about the old covenant. परमेश्वर ने मोजेस को जो आज्ञा दिया, 10 आज्ञा, एक्सोडस हम 20 में देखते हैं। We see the 10 commandments that the Lord gave through Moses. 13 से 17 तक कोई पढ़ेगा? Exodus हिंदी में? 20, हाँ, 13 से 17 तक कोई पढ़ेगा? 13 to 17. हिंदी You में? shall, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to your neighbor. मैं एक लिस्ट बताया, तुम खून मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, बहुत सारा परमिशन आगे दिया। So this is a list of the commandments that the Lord gave, like do not murder, do not commit अगर हम- adultery. हाँ, इस आगे 19 में अगर 5 में पढ़ेगा, एक्सोडस 19 5 में, But when we read chapter 19 and verse 5, it says there that now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. देखो ये वचन थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरे मानोगे, मतलब क्या मानोगे? जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया उस बात को मानोगे, लिखा है मेरी वाचा का पालन करोगे, तो क्या लिखा है? तो सब लोग में से तुम मेरी निज धन ठहरोगे, और पृथ्वी तो मेरी ही है। और आगे लिखा है 6 में, और तुम मेरी दृष्टि में याजक और राज और पवित्र जाति ठहरोगे। So we see here that the Lord is saying that if you obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine. And verse 6 he says, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. तो परमेश्वर चाहता है कि ये ब्लेसिंग हमको दे। The Lord wants to give us his blessing. पर हम आगे हम पूरा ऐसा वचन में पढ़ेगा तो वो लोग भी रेडी हो गए, हाँ प्रभु परमेश्वर इस बात को जो आगे तूने दिया है उस बात को हम मानेंगे। So we see here that the people also tell him that we are ready and we are willing to listen to your words. आवाज नहीं आगे, अच्छा आगे, ओके ओके ओके।
या सो वो लोग एग्री हो गया कि परमेश्वर जो आज्ञा तूने दिया है उस बात को हम मानेंगे. So they are willing to tell the Lord and they are willing to listen to his voice. अब मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमको भी आगे दिया है. So I want to tell you that the Lord also has given us his commandments. तुम व्यभिचार मत करो, गुस्सा मत करो, Do not commit adultery, do not get angry, तुम्हारी बात पे हाँ का हाँ और ना का ना हो, let your yes be yes and your nay be nay. दूसरे पर दोष मत लगाओ, Do not accuse others दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, and do not pray to make a show to others. दिखाने के लिए उपवास मत करो. Do not fast in order to show others. पर ये भी आज्ञा हम जिस तरह वो लोग ने लिया उस तरह हम भी ले सकते. So in the same way that the people of Israel took it, we also should be willing to take it in that same way. उन लोगों को जो आज्ञा मिला था वो लोग ने निभा नहीं पाया. But those commandments, they were not able to keep it. क्या जो यीशु मसीह जो आज्ञा दे रहा है तुम और मैं उसको निभा पाएगा, उसको पूरा कर पाएगा? The commandments given by the Lord Jesus, are we able to keep it or not? सिर्फ पुराना नियम का आज्ञा और नया नियम का आज्ञा बहुत फर्क है. There's a lot of difference between the Old Testament laws and the New Covenant laws. पुराने नियम में जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसमें कोई भी मदद नहीं था, तुमको फॉलो करना है, that's it. In the Old Testament, the commandments, when they were given, there was no help given to the people. They just had to keep the laws. कैसे करना है उनको करना है बस, that's it. कैसे करना है वो परमेश्वर ने उनको कोई हेल्प नहीं दिया था उस टाइम पे. How are we to keep it? That help was not given to them. They just had to keep the law. लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर. But it's not so in the New Covenant. परमेश्वर ने तुमको छोड़ा नहीं है यहाँ पर. The Lord has not left them alone. ये वैसा नहीं है कि पुराना नियम जैसा. It's not like the Old Covenant. हम कैसे हमारे जीवन में लेते हैं उस वचन को? How do we take that word in our lives? फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ. For example, I want to give, मैं पढ़ रहा मत्ती 5 में I'm reading from Matthew 5. लिखा है कि तुम आंखों से व्यभिचार मत करो, It says here that do not commit adultery या तुम गुस्सा मत करो. or do not get angry. सो हम किस तरह से लेते हैं इसको? How do we take this? अब प्रभु ये नहीं बोल रहे कि तुमको करने के लिए, प्रभु बोल रहे कि हम इस तरह से ले यार मेरे को ये करना है, हम ट्राई करते हम. The commandments that the Lord Jesus gives us, are we just trying to keep it with our own effort? अगर इस तरह से कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ, तो हम क्या करें? पुराना नियम जैसे फॉलो कर रहे हैं. So if we just feel that we are going to try to keep these laws, that means we are just living in the old covenant life. मैं बताना चाहता हूँ जॉन 5:39 में निकालेगा कोई? Let's read from John 5 and verse. John 5:39. John 5:39. John 5:39. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है. देखो क्या लिखा है उसमें, इसे इंग्लिश में रीड करो. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is these that bear witness of me. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि तुमको लगता है कि उसमें अनंत जीवन है, और ये वही गवाही दे रहे हैं जिसकी मेरे बारे में, और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते. So here it's saying that you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is these that witness of me, but you are unwilling to come to me. जब परमेश्वर हमको पता है, बहुत सारा आज्ञा हमको पता है नॉर्मली, यीशु मसीह ने क्या क्या हमको आज्ञा दिया है. झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, आंखों से व्यभिचार नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है. पर जब हमको पता चलता है तो हम क्या करते हो? So we know all these commandments that were given by the Lord Jesus, that do not commit adultery with your eyes, do not get angry. But when we come to these commandments, what are we doing about it? क्या परमेश्वर के पास जाकर प्रभु मुझे वचन में लिखा है, बट यहाँ पर क्या लिखा है? वो लोग फरीसी लोग यीशु के पास आना नहीं चाहते थे. But we see that when we see these commandments of the Lord, what do? The Pharisees were not coming to the Lord, ताकि यीशु के द्वारा जीवन मिले, that they could get life through Jesus. और इसलिए अब हम मैसेज सुनते हैं, हमको कन्विक्शन मिलता है, अरे यार हमको ऐसा करना चाहिए.
So या whenever we listen to a message, we are convicted and we want to follow that. बट आपको यह एहसास अगर हो गया रहेगा कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है, But if we have that understanding that I will not be able to keep this with my own effort, हम यीशु के पास जा सकते हैं. then we can go to the Lord. जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो यीशु के पास जाओ, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे अंदर इच्छा है बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ. When we read about it, when we hear the word of God, let's go to the Lord and ask Him to help us, saying that I'm not able to keep this. और आपको पता है कि नया वाचा कैसा है, इब्रू 8 में निकालेगा हम, चैप्टर 8. Let's read from Hebrews chapter 8. It's given about the new covenant. मैं उससे पहले एक गलेशियंस में जाना चाहता हूँ. मैं हो सकता है कि हम परमेश्वर के आज्ञा पालन करते वक्त हम उस चीज को कर ले, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गुस्सा करना परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बट ये मैं खुद का ताकत, खुद का बल, खुद का माइंड लगाकर मैं क्या हो गया, वहां पर विजय पा लिया और वो चीज को पा लिया जो परमेश्वर ने बोला है कि तुम गुस्सा मत करो. So before that, we'll turn to the book of Galatians. And if we have tried to keep God's law with our own effort, like do not get angry, and we have been able to keep that law, then with our own effort we have succeeded. Galatians chapter 4, Galatians 4, 21 से हम 31 तक देखेंगे उसको. we'll see from verse 21 to verse 31. 21 से 25 तक देखेंगे पहले. First, we'll see from verse 21 to 25. तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से. परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हगार है. और हगार मानो अरब का सिने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है. सो यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि लिखा है कि परंतु यहाँ 2 वाचे हैं, एक तो इस्माइल जो जन्म हजीरा और एक सारा. So here we see there are 2 covenants allegorically mentioned. That is, one is through Hagar and one is through Sarah. देखो जो परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था कोई संतान होएगा. The Lord had promised Abraham that he would have a child by promise. उसने विश्वास किया He believed it और आगे चलता गया. and he kept और walking. कितना साल बीतने के बाद उसने देखा कि परमेश्वर ने मुझे संतान ही नहीं दिया. And after many years had passed, he found that the Lord has not given him a son. संतान नहीं दिया. Had not given him a son. हाँ, तो उसके बाद उसको क्या हो गया, फिर वो लोग ने सोचा कि हम सारा का दिमाग में आया कि हम परमेश्वर को थोड़ा हेल्प करेंगे, आजेरा के द्वारा एक पुत्र जन्म होएगा, तो हम उसको आगे कर लिया और उसके क्या हुआ, इस्माइल को जन्म दिया. So we see here that Sarah, she tried to help God. So she said that why not ask Hagar to have a relationship with Abraham, and in this manner Ishmael was produced. क्या परमेश्वर ने उस चीज को एक्सेप्ट किया? Did God accept this thing? परमेश्वर ने जो वादा किया था वो हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया. And later on we see that God kept his promise. परमेश्वर ने उसको अलाउ किया कि वो इस अवस्था में आ जाए कि प्रभु, उसको समझ में नहीं आ रहेगा कि प्रभु मैं अभी तो 100 साल या 99 इयर्स हो रहा है और सारा भी उसका कोख में वो बच्चा नहीं दे पाएगी, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है. So God brought Abraham to a place where he felt that now I am 100 years and Sarah is also barren. How will it be possible for her to give a child? देखता कि उसने, लेकिन लिखा है कि उसने विश्वास किया. But we see that it's written about Abraham that he परमेश्वर- believed. जो इस्माइल और उसकी मम्मी को उसको बोला कि भेज दो यहाँ से.
So Hagar and her son Ishmael were sent out. अब परमेश्वर ने उसको जो आइजैक को दिया, And then the Lord blessed them with Isaac. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब परमेश्वर को ओबे करने का हम ट्राई करते हैं, परमेश्वर को फॉलो करने का ट्राई करते हैं, हम अपना खुद का बल ताकत लगाकर हम इस्माइल को जन्म दे सकते हैं। हमको लगता है अरे अब मिल गया अभी, और इसका परिणाम क्या पता है, हमारे जीवन में एक घमंड आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि घमंड आ गया कि अरे मैंने प्रभु को फॉलो कर रहा हूँ। फिर हम लोगों को नीचा देखना चालू कर देते, लोगों को तुच्छ जानना चालू कर देते। So many times, even in our own lives, when we with our own effort can produce Ishmael, and what is the result of that is that we become proud in our heart and we fall into so many problems because of that. और जब भी हम खुद का ताकत लगाकर हम कोशिश करते हैं तो हम इस्माइल को जन्म देते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, याद रखो, Whenever we with our own effort try to produce something, we can only produce Ishmael. परमेश्वर वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। And the Lord will not accept. परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं विश्वास के द्वारा एक जो प्रॉमिस किया है उसके द्वारा मैं संतान देने वाला हूँ। The Lord has promised in His word that through the promise, God will bless Abraham with a son. जब अब्राहम को जब आइजैक जन्म हो गया, उसको कितना खुशी मिला रहेगा, प्रभु मैं तो मेरे को लगा ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कैसे हो गया, तो उसको उससे विश्वास बढ़ गया उसका कि परमेश्वर ने किया है। So when Isaac was born, Abraham must have rejoiced so much because he thought that this was something impossible to happen. तो मैं बताना चाहता हूँ कि पुराना नियम का ओबे करना और नया नियम का ओबे करना कितना फर्क है। So I just want to make it clear to you what a vast difference there is between obeying in the Old Testament and obeying in the New Testament. परमेश्वर का वचन को लेकर हम खुद ही ओबे करने का कोशिश करना चाहते हैं। If we take the word of God and with our own effort we try to obey, क्या हम उस स्थिति में आ गए, प्रभु मेरे अंदर ऐसा अवस्था नहीं है कि मैं इसको प्रोड्यूस कर सकूं, मैं इसको पैदा कर सकूं या ये ओबे कर सकूं? have we come to the place where we are able to tell the Lord, Lord, I cannot do this on my own, I cannot produce it. लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है, But the Lord has promised in His word. विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा। Through faith, the Lord will do this work in us. और कैसे काम करेगा हम इब्रू And how will He 8 में work? देखते हैं। It says in Hebrews 8, 8 का 10, and verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them upon their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर एक नया वाचा बांध रहे हैं। We see here that the Lord is making a new covenant with His people. हमने देखा पुराना वाचा में परमेश्वर ने वाचा जो बांधा था वो ऊपर से था, वो वचन दिया था परमेश्वर ने। We see in the Old Covenant that the Lord has just given a commandment. लेकिन नया नियम में देखते कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था मेरे हृदय में लिखेगा। But we see in the New Covenant that the Lord is saying that I will put my laws within their minds. इसका परिणाम क्या होएगा? And what is the result of that? मैं देखता हूँ कि जब हम कितने बार हमने लास्ट टाइम भी सुना था कि हम शत्रु को माफ करना चाहिए। Even last time we heard that we should forgive our enemies. हम ऐसा परीक्षा में नहीं पढ़ते कि हम शत्रु का मर्डर करें। कोई गिरता है ऐसा? कोई भी नहीं गिरता रहेंगे यहाँ पर। So here none of us would be thinking that we have to murder our enemies. बट हमारे मन में उसके प्रति जलन हो सकता है। But in our hearts we may be having such hatred towards them. हमारे मन में ऐसा नफरत हो सकता है कि कोई उसके साथ बुरा करेगा तो मजा आ जाएगा। So we may be able to enjoy if somebody does something evil to that person. सी ये अंदर की बात है। This is something that's hidden, internal. अब परमेश्वर यीशु मसीह यही चीज से डील करने के लिए आया, अंदर का चीज। And the Lord has come to deal with such hidden things. ये कैसे जाएगा? ये कैसे जा सकता है? How will we be free from these things? प्रभु के पास, जैसा मैंने जॉन 5:39 में पढ़ा
कि परमेश्वर के पास जाकर मांग सकते हैं, प्रभु मुझे मेरे अंदर इस भाई के प्रति मैं उसको कुछ मारा नहीं, मैं उसको कुछ गाली भी नहीं दिया, बट मेरे मन में अभी भी उसके प्रति जलन गुस्सा है. So we can go to the Lord, and just like we heard from John chapter 5 and verse 39, it says that be willing to come to the Lord. In the same way, we can go to the Lord and tell the Lord, maybe I have not done any harm to this person, but in my heart is not clear towards this person. मैं चाहता हूँ इस भाई को दिल से माफ करूं, I want to forgive this person from my heart, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ but परमेश्वर. I'm not able to do this, my Lord. क्या आपने एक बार भी परमेश्वर के पास जाकर इस तरह बोला है कि प्रभु मैं Have नहीं you- कर पा रहा हूँ? Have you gone in this manner before the Lord and asked Him to help you? जवान भाई और बहनों, Young brothers and sisters, आपके लाइफ में जो टेम्पटेशन है, सेक्सुअल temptation- टेम्पटेशन हो सकता है. the temptations that you face in sexual matters, आप सोचते हैं, प्रभु ये बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. and you may tell the Lord, Lord, this is very strong, I'm not able to overcome. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु ने एक स्टेटमेंट बोला मत्ती 19 में, The Lord said a statement in Matthew chapter जो 19. मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है. The Lord said that what is impossible with man is possible with ये कब God. बोला? जब ये एक धनवान के व्यक्ति को देखा, यीशु को छोड़कर चला गया, और यीशु ने क्या बोला कि एक धनवान को एक सुई के नाक से हूट निकल जाएगा, पर धनवान को प्रवेश करना बहुत कठिन है. So the Lord said this verse when a rich man left him and went away, and the Lord said that just like it's difficult for a camel to enter through the eye of a needle, in the same way it's difficult for a rich man to enter the kingdom of God, but it's possible for God to make it the impossible possible. उसके चेले ने बोला, यीशु ये कैसे किसका उद्धार होएगा, फिर कौन उद्धार पा सकते हैं? इस ऐसा लोगों का ये लगा, बहुत हार्ड और मुश्किल लगा. So we see that the disciples asked Jesus, then who will be able to enter the kingdom of God? गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर कर सकता है. So the good news is that God is able to परमेश्वर accomplish तुम्हारे it. अंदर काम कर सकता है. The Lord is able to convict and Hallelujah. to do this work. इसके लिए हालेलुया बोल सकते हैं. Can we say hallelujah to परमेश्वर this? हमारे अंदर काम कर सकता है. The Lord is able to do this. परमेश्वर हमें इतना योग्यता देगा कि हम शत्रु को माफ करें दिल से. The Lord is able to work in our hearts that we will be able to forgive our enemies from our heart. और हम परमेश्वर का काम अगर हम करने जाएंगे तो क्या होएगा? But if we try to do God's work, what will happen? 100% फेल हो जाएगा. There'll be 100% failure, जैसा अब्राहम हो गया, just like it happened with Abraham. उसको लगा यही प्रॉमिस है, इस्माइल को लगा इस्माइल मिल गया, यही परमेश्वर ने दे दिया, यही बच्चा है, उनको उसको लगा. So, just like Abraham felt that Ishmael was the fulfillment of God's promise, तो इसीलिए हम परमेश्वर के पास जाकर हम बोलेंगे, प्रभु मुझे वो लाइफ चाहिए, तो परमेश्वर हमको देगा. so that is why we will go to the Lord and ask Him, Lord, I want this life. और एक वचन में बताना चाहता हूँ जो हमेशा ज्यादातर मैं क्लेम करता हूँ. Also, another verse I would like to share, which I have shared many a times. मैं थोड़ा सा बच्चे लोग के लिए बोलना चाहता हूँ. I want to speak to the children. बच्चे लोग यहाँ पर देख रहे हैं? Children, are you paying attention? क्या मम्मी और डैडी का ओबे करने के लिए बहुत आसान लगता है तुमको? Is it easy for you to obey your parents? यस? कोई आसान लगता है तो प्लीज हाथ ऊपर कर सकता है. आई होप कोई नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूँ I want to tell you, कि परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है. the Lord wants to help you. हमको लगता है कि मम्मी ने बोली है ये आइसक्रीम खाना नहीं, अभी परसों खाना है, बट हमको टेम्पटेशन हो रहा है कि अभी आज ही खाने का मुझे. So maybe your mother tells you that don't have the ice cream today, have it day after tomorrow, and you're not able to do that. You want to have it today itself. चॉकलेट आज फ्रिज में पड़ा है, मेरे को आज ही खाना है. And there's chocolate in the fridge, and I want to have it today itself. तो हमको मुश्किल लगता है, हार्ड लग रहा है, मुझे खाने का इच्छा हो रहा है. It's difficult for us to obey, and we have the desire to eat that. चिल्ड्रन, अगर हम जीसस के पास जाएंगे, जीसस मुझे हेल्प करो, मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है मुझे इस समय में,
So, children, if you go to the Lord and tell the Lord Jesus that this is Jesus- difficult for me, please help me. और जीसस आपको हेल्प करने के लिए तैयार है. The Lord Jesus is willing to help you. सो हम देखते हैं फिलिपियंस चैप्टर 2 We'll turn to Philippians chapter 2 उसका 13 में. and verse 13. For it is God who is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डालता है. देखो यहाँ पर ये वचन अंदर की चीज बता रहा है, परमेश्वर ही है. अगर हम यहाँ पर हम खुद से ट्राई करने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम डिस्करेज हो जाएंगे. हमको लगेगा प्रभु ये कैसे हो, ये कैसे कैसे मैं करूँ, कैसे कर सकता हूँ मैं. तो यहाँ पर बता रहे कि परमेश्वर को अनुमति दो. पुराने नियम में पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया है और वो हमको योग्यता देता है परमेश्वर के बातों को ओबे करने के लिए. So, this is something internal that is speaking in this verse, where it says that for God, it is God who is at work in you. So, when we allow the Lord to work in us, in the Old Testament, we see there was no Holy Spirit to help the people, but today we have the Holy Spirit to help us. If we allow the Holy Spirit to work in us, we will be able to keep the commandments. परमेश्वर हमको इच्छा भी देता है और हमको योग्यता भी देता है कि हम उसको करें. He gives us the will to do it, and He also gives us the ability to do it. हम टेम्पटेशन में गिरेंगे, ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग कुड़कुड़ाने का करेंगे तो परमेश्वर हमको योग्यता देगा कि हम उस चीज से विजय पाए. So, if we are grumbling and complaining, the Lord will give us the ability to stop complaining and grumbling. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नया वाचा है, एक नया वाचा है यीशु मसीह के अंदर जो हम देखते हैं. So, dear brothers and sisters, this is the new covenant where the Lord is willing to help us. अब परमेश्वर हम सभी को बुला रहा है. And the Lord is calling out to each of us. मत्ती 11 में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ. And in Matthew 11, the Lord says, Come unto me, all you who labor and are heavy laden. सभी को इनविटेशन नहीं दिया उसने. The Lord did not give this invitation to जो everybody. बोझ से दबे हुए लोग जो कोशिश कर रहे हैं, प्रभु मेरे को आपका आगे का पालन करना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे. So it's to those who are heavy laden and burdened that the Lord is telling them to come to Him. तो परमेश्वर उनको विश्राम देना चाहता है. The Lord wants to give them His rest. और आगे बोलते कि मुझसे आके सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ. And the Lord goes on to say that I'm meek and lowly in heart. और हम सीखने के लिए यीशु मसीह से हमको दीनता नम्रता चाहिए. So we can learn what it is to be meek and humble from the Lord Jesus. हो सकता है ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आता रहेगा, So it may be that you're not able to follow what I am trying to explain. बट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे रेवलेशन दो, मुझे प्रकट करो इस बात को. So just like I told you in the beginning, ask the Lord to give you the revelation that you will be able to understand. इस बात को मैं समझ पाऊँ और इसमें जी पाऊँ. That you may be able to understand and live such a life. हम जैसे मैंने क्लियर बताया कि पुराने नियम का आगे पालन कैसा किया और नए नियम में कैसा करने का हमको. So just like I explained very clearly to you how the laws were kept in the Old Testament and how it is supposed to be kept in the New Testament. मैंने बताया कि पुराने नियम में कुछ नहीं था हेल्प, बट नए नियम में परमेश्वर ने हमको आत्मा दिया कि वो हेल्पर है, हमको हेल्प करता है. So in the Old Testament we see that there was no help given to the people, but in the New Testament we see that the Holy Spirit is there. He's given to us as our helper. पुराने नियम में वो लोग परमेश्वर के पास जाके संगति नहीं कर सकते, बट नए नियम में हम जा सकते हैं यीशु के पास. So in the Old Testament, people could not go to the Lord and have fellowship with Him. But in the New Testament, the Lord is willing to have fellowship with us. God bless you, brothers. May the Lord bless you.